اچھے اخلاق اور کردار اچھے اخلاق اور کردار انسان کی شخصیت کا سب سے خوبصورت زیور ہیں۔ دولت، طاقت، شہرت اور ظاہری حسن سب عارضی چیزیں ہیں، لیکن اچھے اخلاق انسان کو لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ ایک بااخلاق شخص نہ صرف اپنے گھر، محلے، اسکول، دفتر اور معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ انسان کا اصل حسن اس کے چہرے میں نہیں بلکہ اس کے اخلاق میں ہوتا ہے۔ جو شخص نرم دل، سچا، ایماندار، صابر، شکر گزار اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا ہو، وہی حقیقی معنوں میں کامیاب انسان ہے۔ اسلام نے اخلاق کو بہت بلند مقام دیا ہے۔ نبی کریم کی پوری زندگی اخلاق حسنہ کا نمونہ ہے۔ اپنے نہ صرف لوگوں کو عبادت سکھائی بلکہ حسن سلوک، رحم دلی، امانت، سچائی، بردباری اور معافی کا درس بھی دیا۔ اب کی بعثت کا ایک بڑا مقصد انسانوں کے اخلاق کو سنوارنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان کی پہچان صرف اس کی زبان سے نہیں بلکہ اس کے برتاؤ، عادات اور کردار سے ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس علم تو ہو لیکن اخلاق نہ ہو تو اس کا علم اس کے لیے فائدہ مند نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس دولت ہو مگر کردار نہ ہو تو لوگ اس کے قریب آنے سے کتراتے ہیں۔ کردار انسان کی اندرونی سچائی کا نام ہے۔ اچھا کردار وہ ہے جو تنہائی میں بھی پاکیزہ ہو اور لوگوں کے درمیان بھی صاف و شفاف نظر آئے۔ جب انسان کا ضمیر زندہ ہو تو وہ برائی سے بچتا ہے، حق بات پر قائم رہتا ہے اور کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالتا۔ اچھے کردار والے انسان زبان نرم، لہجہ میٹھا اور رویہ متوازن ہوتا ہے۔ وہ چھوٹی بات پر غصہ نہیں کرتا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ عزت سے پیش آتا ہے۔ ایسا شخص جہاں بھی جاتا ہے وہاں امن، محبت اور اعتماد لے کر جاتا ہے۔ آج کے دور میں اچھے اخلاق کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ موجودہ زمانہ تیزی، مقابلہ، مفاد پرستی اور بے صبری کا زمانہ ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں کبھی کبھی اپنی انسانیت بھول جاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں اچھے اخلاق انسان کو بہتر بناتے ہیں اور اسے دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں۔ جو شخص سچ بولتا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، وہ حقیقی معنوں میں کامیاب انسان ہے۔ اچھے اخلاق کی بنیاد گھر سے پڑتی ہے۔ بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ اگر گھر میں پیار، ادب، سچائی اور برداشت کا ماحول ہو تو بچہ بھی ویسا ہی بنتا ہے۔ ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کو صرف کھانا، کپڑا اور تعلیم ہی نہ دیں بلکہ ان کی تربیت بھی کریں۔ بچہ اگر بچپن سے ہی سلام کرنا، جھوٹ نہ بولنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں سے شفقت کرنا، صفائی اختیار کرنا اور دوسروں کا خیال رکھنا سیکھ لے تو وہ بڑا ہو کر ایک اچھا انسان بنے گا۔ گھر کی تربیت انسان کے پورے مستقبل پر اثر ڈالتی ہے۔ اسکول اور مدرسہ بھی کردار سازی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک اچھا استاد صرف کتاب نہیں پڑھاتا بلکہ اخلاق بھی سکھاتا ہے۔ شاگرد جب استاد سے ادب، نظم و ضبط، محنت اور ذمہ داری سیکھتے ہیں تو ان کی شخصیت نکھر جاتی ہے۔ اچھا طالب علم وہ نہیں جو صرف نمبروں میں آگے ہو بلکہ وہ ہے جو سچائی، محنت، وقت کی پابندی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی رکھتا ہو۔ اسکول میں صفائی، خاموشی، احترام اور تعاون کا جذبہ پیدا کرنا بھی اخلاق کی تعلیم کا حصہ ہے۔ دوستی اور معاشرتی تعلقات میں بھی اچھے اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک سچا دوست وہ ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے، سچ بات کہے، غلطی پر سمجھائے اور کامیابی پر حسد نہ کرے۔ اچھے اخلاق والے لوگ دوسروں کی عزت کرتے ہیں، ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں اور اختلاف کے باوجود بدتمیزی نہیں کرتے۔ معاشرے میں نفرت، جھگڑا، بدگمانی اور لڑائی اکثر اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب لوگوں کے اخلاق کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہر شخص برداشت، نرمی اور انصاف کا دامن تھام لے تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ سچائی اچھے اخلاق کی بنیاد ہے۔ جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے مگر آخرکار انسان کی عزت ختم کر دیتا ہے۔ سچا انسان ہر حال میں قابل اعتماد ہوتا ہے، لوگ اس پر یقین کرتے ہیں اور اسے اپنا رہنما سمجھتے ہیں۔ سچائی صرف زبان سے سچ بولنے کا نام نہیں بلکہ نیت، عمل اور رویے میں بھی سچائی ہونی چاہیے۔ جو شخص اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہو اس کے کردار میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اچھے کردار والا شخص ایک ہی چہرہ رکھتا ہے، ایک ہی بات کرتا ہے اور ایک ہی راستے پر چلتا ہے۔ امانت داری بھی اچھے اخلاق کا بڑا حصہ ہے۔ امانت صرف کسی چیز کو محفوظ رکھنا ہی نہیں بلکہ ہر وہ ذمہ داری ہے جو انسان پر سونپی گئی ہو۔ اگر کوئی شخص وقت، مال، راز، عہدہ اختیار میں دیانتدار ہے تو اس کا کردار مضبوط ہے۔ امانت دار شخص لوگ
وہ ہے کہ اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا۔ آج معاشرے میں بہت سی خرابیاں بددیانتی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہے وہ نہ صرف دوسروں کا نقصان کرتا ہے بلکہ اپنی عزت بھی کھو دیتا ہے۔ بردباری اور صبر بھی اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب اس کے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی کوئی اس کی بات کا غلط جواب دیتا ہے، کبھی اسے نقصان پہنچتا ہے، کبھی اس کی محنت دیر سے رنگ لاتی ہے۔ ایسے موقع پر غصہ بدلہ اور جلد بازی انسان کو بگاڑ دیتی ہے، لیکن جو شخص صبر سے کام لیتا ہے وہ مشکلات سے بڑا بن کر نکلتا ہے۔ نرمی ہمیشہ سختی پر غالب آتی ہے۔ بردبار انسان لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ رہ کر سکون ملتا ہے۔ معافی بھی اخلاق کا حسین پہلو ہے۔ ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بڑا وہی ہے جو معاف کرنا جانتا ہو۔ انتقام اور کینہ دل کو بھاری بنا دیتے ہیں، جبکہ معافی دل کو صاف کرتی ہے۔ جو شخص دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ معاشرے میں اگر معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو بہت سے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ معافی کمزوری نہیں بلکہ طاقت کی علامت ہے، کیونکہ ہر کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ خدمت خلق بھی اچھے کردار کا حصہ ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، محتاجوں کے کام آنا اور ضرورت مندوں کا سہارا بننا انسان کو بلند مقام دیتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے درد کو محسوس کرتے ہیں وہی حقیقی انسان ہیں۔ خدمت خلق سے دل نرم ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے اور معاشرہ بہتر بنتا ہے۔ ایک مسکراہٹ، ایک اچھا لفظ، ایک چھوٹی مدد بھی کسی کے لیے بڑی نعمت بن سکتی ہے۔ عاجزی بھی اخلاق کی خوبصورتی ہے۔ تکبر انسان کو گرا دیتا ہے، جبکہ عاجزی اسے بلند کر دیتی ہے۔ جو شخص اپنی خوبیوں پر فخر کر کے دوسروں کو حقیر سمجھے وہ دراصل کمزور ہوتا ہے، لیکن جو شخص علم، مال، منصب، صلاحیت کے باوجود خود کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے وہی قابل احترام ہے۔ عاجز انسان دوسروں کی بات سنتا ہے، سیکھتا رہتا ہے اور اپنی غلطیوں کو مان لیتا ہے۔ یہی وصف انسان کو محبوب بناتا ہے۔ زبان کا حسن بھی اخلاق کا حصہ ہے۔ نرم اور میٹھی زبان دلوں کو جیت لیتی ہے، جبکہ سخت اور کڑوی زبان رشتوں کو توڑ دیتی ہے۔ ایک اچھا انسان گالی نہیں دیتا، طنز نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا اور کسی کی دل آزاری نہیں کرتا۔ اس کی گفتگو میں شائستگی، ادب اور خیر خواہی ہوتی ہے۔ زبان اگر سنبھل جائے تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ کردار صرف لوگوں کے سامنے اچھا نظر آنے کا نام نہیں بلکہ تنہائی میں بھی پاک رہنے کا نام ہے۔ اصل امتحان وہ ہے جب انسان اکیلا ہو اور گناہ آسان نظر آ رہا ہو۔ اس وقت اگر وہ اللہ کے خوف سے بچ جائے تو اس کا کردار مضبوط ہے۔ نیک کردار انسان کا باطن اور ظاہر ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس کی عبادت، اس کا اخلاق، اس کی گفتار، اس کا کاروبار اور اس کے تعلقات سب ایک ہی اصول پر قائم ہوتے ہیں۔ اچھے اخلاق کے بہت سے فائدے ہیں۔ اس سے گھر میں محبت بڑھتی ہے، دوستوں میں اعتماد قائم ہوتا ہے، معاشرے میں امن پیدا ہوتا ہے اور انسان کی شخصیت پر وقار بن جاتا ہے۔ اچھے اخلاق والا شخص مشکل وقت میں بھی دوسروں کا سہارا بنتا ہے۔ لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے۔ اخلاق حسنہ انسان کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دلواتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق اور کردار پر توجہ دینی ہوگی۔ ہمیں سچ بولنا ہوگا، وعدہ نبھانا ہوگا، والدین کا ادب کرنا ہوگا، استاد کی عزت کرنی ہوگی، پڑوسی کا حق ادا کرنا ہوگا، محتاجوں کی مدد کرنی ہوگی اور ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بڑی شخصیت بنتی ہے۔ ایک مسکراہٹ، ایک سلام، ایک مدد، معافی اور ایک نرم لفظ دلوں کو بدل سکتا ہے۔ آخر میں یہ حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کی اصل پہچان اس کا کردار ہے۔ اچھا اخلاق اور پاکیزہ کردار انسان کو محبوب، محترم اور کامیاب بناتے ہیں۔ دنیا میں بھی لوگ ایسے انسان کو پسند کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں اور اپنی اولاد کو بھی کی تعلیم دیں۔ اگر ہر گھر میں اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں تو پورا معاشرہ سنور سکتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو عزت، محبت اور کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے، اپنے کردار کو سنوارنے اور دوسروں کے لیے آسانی کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھے اخلاق اور کردار، اچھے اخلاق اور کردار انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ مال و دولت، طاقت، شہرت اور منصب عارضی چیزیں ہیں، مگر اچھے اخلاق انسان کو ہر دل عزیز بنا دیتے ہیں۔
जिस शख्स के अखलाक अच्छे हों वो लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। इसके मुकाबले में बद अखलाक शख्स चाहे कितना ही मालदार और ताकतवर क्यों ना हो, लोग इससे दूर रहते हैं। इसीलिए इस्लाम में अखलाक, पाकीज़गी, नरम खोई, सच्चाई, अमानत, हिल्म, सब्र, अफ़ू और तवाज़ु को बहुत बड़ी फजीलत दी है। इंसान के ज़ाहिर की खूबसूरती इसके लिबास से नहीं बल्कि इसके किरदार से ज़ाहिर होती है। एक अच्छा इंसान वो है जिसकी ज़बान से दूसरों को राहत मिले, जिसके हाथ से किसी को नुकसान न पहुँचे, जिसके चेहरे से मुस्कुराहट झलके और जिसके दिल में सबके लिए खैर हो। किरदार इंसान की असल पहचान है। अगर किरदार मजबूत हो तो मामूली इंसान भी अजीम बन जाता है, और अगर किरदार कमज़ोर हो तो बड़े से बड़ा आदमी भी बेवकात हो जाता है। इस्लाम में अखलाक को दीन का बुनियादी हिस्सा करार दिया गया है। नबी करीम की सीरत मुबारका हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना है। आपके अखलाक इतने बुलंद थे कि दुश्मन भी आपकी सच्चाई, अमानत और हसन सलूक के मोतरिफ थे। आपने फरमाया कि मैं अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूँ। इससे मालूम होता है कि दीन की रूह सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि अखलाक भी है। नमाज, रोज़ा, हज और ज़िक्र इंसान को बेहतर बनाने के लिए हैं, ताकि इसके अंदर नरमी, आजिज़ी, सब्र और अच्छा बर्ताव पैदा हो। अच्छे अखलाक की पहली निशानी सच्चाई है। सच्चा इंसान हर हाल में सच बोलता है, चाहे सच इसके हक में हो या खिलाफ। झूठ वक्ती फ़ायदा तो दे सकता है मगर आखिरकार रुसवाई का सबब बनता है। सच बोलने वाला शख्स काबिल एतमाद होता है, लोग इस पर भरोसा करते हैं और उसकी बात को अहमियत देते हैं। सच्चाई इंसान के किरदार को मजबूत बनाती है और इसे झूठ, फरेब और धोखे से बचाती है। दूसरी अहम सिफत अमानतदारी है। अमानत सिर्फ किसी चीज़ को महफूज रखना नहीं बल्कि हर वो जिम्मेदारी है जो इंसान के सुपुर्द की जाए। अगर कोई शख्स किसी का माल, राज, ओहदा, वक्त या जिम्मेदारी दुरुस्त तरीके से निभाए तो वो अमानतदार कहलाता है। अमानतदारी एक ऐसा वस्फ है जो मुआशरे में एतमाद पैदा करता है। जहाँ अमानत खत्म हो जाए वहाँ बेएतमादी, बददियानती और फसाद फैल जाता है। अच्छे किरदार वाले लोग हमेशा अमानत को अपने ऊपर कर्ज समझते हैं और उसका काफ अदा करते हैं। तीसरी खुसूसियत हसन सलूक है। अच्छे अखलाक वाला शख्स दूसरों के साथ नरमी, मोहब्बत और इज्जत से पेश आता है। वो कमज़ोरों पर जुल्म नहीं करता, बड़ों का एहतराम करता है, छोटों से शफकत करता है और ज़रूरतमंदों की मदद करता है। वो अपने घर वालों के साथ भी अच्छा बर्ताव करता है, क्योंकि असल इखलाकी इम्तिहान घर से शुरू होता है। जो शख्स घर में सख्त मिजाज और बाहर न हो, इसके अखलाक कामिल नहीं कहला सकते। असल अच्छा इंसान वो है जो सबके साथ अच्छाई करे, खास तौर पर उन लोगों के साथ जिनसे इसे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। अच्छे अखलाक में सब्र को भी बहुत अहम मकाम हासिल है। ज़िंदगी में हर इंसान को मुश्किलात, तकालीफ, नाइंसाफ़ी और आजमाइशों का सामना होता है। जो शख्स गुस्से में आकर गलत कदम उठा ले वो अपने नुकसान का सबब बनता है। सब्र इंसान को टूटने नहीं देता। सब्र करने वाला शख्स वक्त के सख्त लम्हों में भी अपने आप को संभालता है और सही फैसला करता है। इखलाकी तौर पर मजबूत इंसान वही है जो तकलीफ भी शको कम और तहम्मुल ज़्यादा दिखाए। अफू और दरगुजर भी अच्छे किरदार की नुमाया सिफात हैं। इंसान से गलती हो जाती है, कभी जानबूझकर और कभी लाइनी में। जो शख्स हर गलती पर बदला लेने पर आमादा हो इसका दिल सख्त हो जाता है, मगर जो मुआफ़ करना जानता है वो बुलंद किरदार का मालिक होता है। मुआफ़ करने से दिलों में मोहब्बत पैदा होती है, नफरत खत्म होती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। बड़े दिल वाला इंसान छोटी बातों पर नाराज़ नहीं होता बल्कि इस्लाह और मोहब्बत के रास्ते अपनाता है। तवाज़ु यानी आजिज़ी भी अच्छे अखलाक की बुनियाद है। मुतकब्बिर इंसान खुद को दूसरों से बड़ा समझता है, जबकि आजिज़ इंसान अपने मकाम के बावजूद नर्म रहता है। आजिज़ी इंसान को महबूब बना देती है। जो शख्स माल और ताकत हासिल करके भी फ़ख्र में मुब्तला ना हो वो हकीकत में अजीम होता है। आजिज़ इंसान दूसरों की बात सुनता है, उनकी इज्जत करता है और ख़ुद को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अच्छे किरदार की एक और अलामत अदल व इंसाफ है। इंसाफ के बगैर मुआशरा कायम नहीं रह सकता। जो इंसान अपने फैसलों में इंसाफ करता है वो दूसरों का एतमाद हासिल करता है। इंसाफ का तकाजा ये है कि दोस्त, दुश्मन, अमीर, गरीब, करीबी और अजनबी सब के साथ बराबर सलूक किया जाए। अगर इंसान अपने फ़ायदे के लिए इंसाफ छोड़ दे तो वो अपने किरदार को नुकसान पहुंचाता है। अच्छा किरदार हमेशा हक के साथ खड़ा होता है, चाहे हक के लिए इसे बानी ही क्यों ना देनी पड़े। ज़ुबान का हसन भी अखलाक का हिस्सा है। नरम बात दिल को नरम करती है, जबकि सख्त बात दिल को जख्मी कर देती है। अच्छा इंसान लोगों को ताने नहीं देता, ऐब नहीं खोलता।
نہیں کرتا اور فضول گفتگو سے بچتا ہے، اس کی زبان سے خیر نکلتی ہے، وہ سلام میں پہل کرتا ہے، دعا دیتا ہے اور اچھی بات کہتا ہے۔ زبان بسا اوقات سب سے بڑی نعمت بھی بن جاتی ہے اور سب سے بڑا فتنہ بھی، اس لیے اچھے اخلاق والے لوگ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھے اخلاق انسان کے گھر، اسکول، دفتر، بازار اور ہر جگہ کام آتے ہیں۔ ایک طالب علم اگر بااخلاق ہو تو اساتذہ اسے پسند کرتے ہیں اور ساتھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ ایک دکاندار اگر ایماندار ہو تو گاہک اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ ایک حکمران اگر باکردار ہو تو رعایا اسے دعا دیتی ہے۔ ایک والدہ اگر نرم مزاج اور بااخلاق ہو تو گھر کا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اس طرح اخلاق صرف فرد کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں۔ بچوں کی تربیت میں اچھے اخلاق کا بہت بڑا کردار ہے۔ بچہ وہی سیکھتا ہے جو وہ گھر میں دیکھتا ہے۔ اگر گھر میں سچائی، محبت، صبر اور احترام ہو تو بچہ بھی اچھا انسان بنتا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو صرف تعلیم ہی نہ دیں بلکہ تربیت بھی دیں۔ انہیں سکھائیں کہ بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، جھوٹ نہ بولیں، وعدہ پورا کریں اور کسی کا دل نہ دکھائیں۔ یہی تعلیم مستقبل کے بہترین کردار کی بنیاد بنتی ہے۔ اچھے اخلاق کا اثر صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو نرم دل، سچے، امانت دار اور مخلوق خدا کے لیے نفع بخش۔ نیکی کا اصل معیار صرف عبادات کی تعداد نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی اور خلق خدا سے حسن سلوک بھی ہے۔ بعض اوقات ایک مسکراہٹ، ایک اچھا جملہ، ایک معافی، ایک مدد، ایک سچی نصیحت بہت بڑے اجر کا سبب بن جاتی ہے۔ معاشرے میں بہت سی برائیاں اسی وقت ختم ہو سکتی ہیں جب لوگ اپنے اخلاق درست کر لیں۔ جھگڑے، لڑائیاں، بداعتمادی، نفرت، حسد اور بددیانتی اکثر اخلاق کی کمی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اگر ہر انسان اپنی زبان، نظر، ہاتھ، دل اور نیت کو درست کر لے تو ماحول بدل سکتا ہے۔ اچھے اخلاق والا شخص صرف اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ وہ راستہ روکنے والا نہیں، راستہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ کردار کی تعمیر وقت مانگتی ہے، یہ ایک دن میں نہیں۔ نونغو نہ بنتا انسان کو ہر روز اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ میری باتوں سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی، میرے رویے میں تکبر تو نہیں، میرے وعدے میں سستی تو نہیں، میری نیت میں کھوٹ تو نہیں۔ جو شخص روزانہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ ایک باکردار انسان بن جاتا ہے۔ کردار کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ دکھاوے سے نہیں بلکہ مستقل مزاجی سے بنتی ہے۔ آج کے دور میں اچھے اخلاق کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ سوشل میڈیا، تیز رفتار زندگی، مقابلے کی دوڑ اور مادیت پرستی نے انسان کو بے چین کر دیا ہے۔ ایسے ماحول میں نرم مزاجی، برداشت، سچائی اور تواضع کا دامن تھامنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو نوجوان اپنے اخلاق کو سنوار لے وہ اپنی زندگی کو بھی سنوار لیتا ہے۔ اس کی گفتگو، اس کے تعلقات، اس کی تعلیم، اس کی روزی اور اس کی پہچان سب بہتر ہو جاتی ہیں۔ آخر میں یہ کہنا درست ہے کہ اچھے اخلاق اور کردار انسان کی اصل زینت ہیں۔ چہرے کی خوبصورتی وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے مگر کردار کی خوبصورتی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اچھے اخلاق انسان کو عزت دیتے ہیں، رشتوں کو مضبوط کرتے ہیں، معاشرے کو بہتر بناتے ہیں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر سچائی، امانت، صبر، درگزر، تواضع، عدل اور حسن سلوک پیدا کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو کامیاب، محبوب اور باوقار بناتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق اپنانے، برے اخلاق سے بچنے اور اپنے کردار کو نبی کریم کی سیرت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھے اخلاق اور کردار، اچھے اخلاق اور بہترین کردار انسان کی سب سے بڑی دولت ہیں۔ دنیا کی ظاہری خوبصورتی، مال و دولت، عہدہ اور شہرت وقتی چیزیں ہیں، لیکن اچھا اخلاق اور پاکیزہ کردار وہ صفات ہیں جو انسان کو دلوں میں زندہ رکھتی ہیں۔ انسان کی اصل پہچان، اس کا لباس، زبان، دولت، خاندان نہیں بلکہ اس کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے ساتھ نرمی، محبت، سچائی، دیانت، عدل اور ہمدردی سے پیش آتا ہے وہی حقیقی معنوں میں باکردار اور بااخلاق کہلاتا ہے۔ اسلام نے اخلاق کو بہت بلند مقام دیا۔ نبی کریم کی بعثت کا ایک بڑا مقصد بھی اخلاق کی اصلاح تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام میں عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق تربیت کو بھی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ایک ایسا شخص جو نماز، روزہ اور دیگر عبادات تو کرتا ہو مگر اس کے اخلاق خراب ہوں وہ کامل مسلمان نہیں بن سکتا، کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کو سنوارتا ہے۔ اخلاق دراصل انسان کے اندر موجود وہ خوبیاں ہیں جو اس کے قول و فعل سے ظاہر ہوتی ہیں۔ جب کوئی انسان سچ بولتا ہے
लोगों का हक अदा करता है, कमज़ोरों पर रहम करता है, बड़ों का एहतराम और छोटों पर शफकत करता है, तो इसके अंदर अच्छे अखलाक की रोशनी नजर आती है। किरदार इससे भी आगे की चीज़ है। किरदार इंसान की मुस्तकिल आदत, इसकी नीयत, इसकी सदाकत और उसके अमली रोई का मजमुआ है। अच्छा किरदार वो है जो अकेले में भी पाकीज़ा हो और लोगों के सामने भी ऐसा इंसान मौका मिलने पर भी गलती नहीं करता और किसी के ना देखने के बावजूद अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर समझ करने की इख्तियार करता है। अच्छे अखलाक इंसान के दिल को नरम करते हैं और मुआशरे को पुरअमन बनाते हैं। जब लोग एक दूसरे के साथ हसन सलूक से पेश आएं, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की बात सुनें और इख्तिलाफ के बावजूद बदजुबानी न करें, तो मुआशरे में मोहब्बत, एतमाद और भाईचारा पैदा होता है। इसके बरक्स बद अखलाकी, झूठ, धोखा, हसद, तकब्बुर, गीबत और बददियानती मुआशरे को तबाह कर देते हैं। बद अखलाक इंसान अपने लिए भी नुकसान का सबब बनता है और दूसरों के लिए भी तकलीफ का बाइस बनता है। अच्छे अखलाक की सबसे पहली अलामत सच्चाई है। सच्चा इंसान दिल का साफ होता है, इसकी बात पर भरोसा किया जाता है और लोग इस पर एतमाद करते हैं। झूठ बोलने वाला शख्स वक्ती तौर पर फायदा तो हासिल कर सकता है, मगर आखिरकार उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। झूठ इंसान के किरदार को कमजोर और उसके एतमाद को तबाह कर देता है। सच्चाई एक ऐसी सिफत है जो इंसान के अंदर इत्मीनान पैदा करती है और इसे नेकी के रास्ते पर कायम रखती है। दूसरी अहम सिफत अमानतदारी है। अमानत सिर्फ किसी की दी हुई चीज को महफूज रखना ही नहीं, बल्कि हर जिम्मेदारी को ईमानदारी से अदा करना भी अमानत है। तालिब इल्म के लिए इल्म की अमानत, उस्ताद के लिए तालीम की अमानत, वालिदैन के लिए औलाद की अमानत और हुक्मरान के लिए रियाया की अमानत है। जो शख्स अमानत में खयानत करता है वो न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि अपने अंदर से एतमाद भी खो देता है। बाकिरदार इंसान हमेशा अमानत को महफूज रखता है और हर हाल में अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। तीसरी अहम खूबी सब्र है। अच्छे अखलाक वाला इंसान मुश्किल वक्त में बेसब्री नहीं दिखाता, गुस्से में आकर गलत फैसला नहीं करता, तकलीफ की हालत में भी शको और शिकायत के बजाय बर्दाश्त का रास्ता इख्तियार करता है। सब्र इंसान को बड़ा बनाता है। जो शख्स सब्र करना सीख लेता है वो जिंदगी के बहुत से फितनों से बच जाता है। सब्र के साथ साथ शुक्र भी जरूरी है। शुक्रगुजार इंसान छोटी नेमतों पर भी खुश होता है और अल्लाह ताला की अता पर राजी रहता है। ऐसा शख्स कभी हसदा नाशुक्री में मुब्तला नहीं होता। अच्छे अखलाक में आजिज़ी भी शामिल है। मुतकब्बिर इंसान दूसरों को हकीर समझता है, अपनी ज़ात को बड़ा समझता है और हर वक्त अपनी बड़ाई जताता रहता है। लेकिन आजिज़ इंसान सबसे एहतराम से पेश आता है, अपनी कामयाबियों पर गुरूर नहीं करता और दूसरों की इज्जत करना जानता है। आजिज़ी इंसान को महबूब बना देती है। लोग ऐसे शख्स से करीब आते हैं जो नर्म दिल, मुनकसिर अलमिजाज और एहतराम करने वाला हो। तकब्बुर इंसान को लोगों से दूर और तन्हाई की तरफ ले जाता है। नरमी और मोहब्बत भी अच्छे अखलाक का है। हिस्सा है। नबी करीम का अंदाज़न गुफ्तगू निहायत नर्म, शफीक और दिल को छू लेने वाला था। अपने कभी सख्त दिलाना रवैया इख्तियार नहीं फरमाया। अब की नरम दिली ने दुश्मनों के दिल भी फतह किए। इससे मालूम होता है कि नरमी इंसान की ताकत है। कमजोरी नहीं, सख्त लहजा, तल्ख बातें और बदतमीजी लोगों के दिलों में नफरत पैदा करती है, जबकि मुस्करा कर बात करना, शफकत से पेश आना और मुआफ कर देना इंसान को अजीम बना देता है। अच्छा किरदार घर से रोए होता है। एक बच्चा सबसे पहले अपने वालिदैन से अखलाक सीखता है। अगर घर में मोहब्बत, एहतराम, सफाई, सच्चाई और नज़्म व ज़ब्त हो तो बच्चा भी अच्छे अखलाक वाला बनता है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ा लिखा ना बनाएं बल्कि बाइखलाक भी बनाएं, क्योंकि तालीम के साथ तरबियत ना हो तो इंसान इल्म तो हासिल कर लेता है मगर उसके किरदार में कमजोरी रह जाती है। इस तरह उस्ताद का भी फर्ज है कि वो बच्चों को सिर्फ निसाब न पढ़ाए बल्कि इनमें सच्चाई, दियानत, अदब और खिदमत का जज्बा भी पैदा करे। स्कूल, मदरसा, दफ्तर और बाजार, हर जगह अच्छे अखलाक की ज़रूरत होती है। एक तालिब इल्म अगर उस्ताद का अदब करे, क्लास में नज़्म व ज़ब्त रखे, साथियों से मोहब्बत करे और झगड़े से बचे तो वो सब के लिए काबिल एहतराम बन जाता है। एक ताजिर अगर दियानत से कारोबार करे, नाप तोल में कमी न करे और ग्राहक को धोखा ना दे तो उसकी तिजारत में बरकत आती है। एक मुलाजिम अगर अपनी ड्यूटी अमानतदारी से निभाए तो वो काबिल एतमाद बनता है। इस तरह अच्छे अखलाक हर शोबे में इंसान को कामयाबी दिलाते हैं। किरदार की मजबूती का एक पहलू ये भी है कि इंसान गलत माहौल में भी अपने आप को महफूज रखे। आज के दौर में बहुत सी बुराइयां आम हो चुकी हैं। सोशल मीडिया, दोस्तों की सोहबत, गलत आदतें और
मकसद मसरूफियात इंसान को इखलाकी कमजोरी की तरफ ले जा सकती हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि इंसान अपनी नज़र, ज़ुबान और सोच की हिफाजत करे। अच्छे किरदार वाला शख्स उन चीज़ों से बचता है जो उसके अखलाक को ख़राब करें। वो अच्छी सोहबत इख्तियार करता है, नेक लोगों के साथ रहता है और अपने नफ्स का मुहासबा करता रहता है। अच्छे अखलाक के बेशुमार फ़ायदे। इससे इंसान के घर में सुकून आता है, मुआशरे में मोहब्बत बढ़ती है, दोस्तों में एतमाद पैदा होता है और दुश्मन भी एहतराम करने लगते हैं। अच्छा अखलाक इंसान के रिस्क में बरकत, उम्र में खैर और इज्जत में इजाफा करता है। लोगों के दिलों में जगह बनाना माल और दौलत से ज़्यादा कीमती है। आज बहुत से लोग ज़ाहिरी कामयाबी रखते हैं मगर उनके अखलाक ख़राब होने की वजह से कोई उन्हें पसंद नहीं करता। इसके बरक्स एक सादा इंसान सिर्फ अपने अच्छे किरदार की वजह से दिलों में बस जाता है। अच्छे अखलाक वाला इंसान दूसरों के ऐब नहीं ढूंढता बल्कि अपने ऐबों की इस्लाह करता है। वो गीबत, बुहतान, हसद और नफरत से बचता है। वो लोगों की खताओं को मुआफ करने की आदत डालता है। मुआफ करना बहुत छोटी सिफत है। जो शख्स मुआफ कर देता है वो दिल के बोझ से आज़ाद हो जाता है। इंतकाम और गुस्सा इंसान को अंदर से खा जाता है जबकि मुआफ़ी दिल को सुकून देती है। इसलिए बाइखलाक इंसान हमेशा दिल बड़ा रखता है। किरदार की हिफाजत के लिए ज़बान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। एक तल्ख ज़बान रिश्तों को तोड़ देती है, दोस्तियाँ ख़त्म कर देती है और इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाती है। नर्म ज़बान दिलों को जोड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान के मुंह से निकले हुए अल्फाज इसकी शख्सियत का आईना होते हैं। अगर ज़बान पर काबू हो तो आदमी बहुत सी बुराइयों से बच सकता है। अच्छे अखलाक वाला शख्स बात करने से पहले सोचता है, दूसरों की इज्जत, नफस का ख्याल रखता है और ऐसी बात नहीं करता जो किसी के दिल को दिखाए। बाज़ औक़ात इंसान के पास इल्म होता है मगर अखलाक नहीं होते और बाज़ औक़ात इसके पास बहुत कुछ नहीं होता मगर अखलाक इतने अच्छे होते हैं कि सब इसे इज्जत देते हैं। हकीकत यह है कि इल्म, ताकत और दौलत सब अपनी जगह अहम हैं, लेकिन अगर उनके साथ अच्छा अखलाक ना हो तो सब कुछ बेमानी हो जाता है। अच्छा अखलाक इल्म को जीनत देता है, दौलत को बरकत देता है और ताकत को इंसाफ बनाता है। अखलाक के बगैर इल्म गुरूर बन जाता है, दौलत जुल्म बन जाती है और ताकत फसाद बन जाती है। नबी करीम की सुरूतन तैयबा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब हर एक से हसन सलूक से पेश आते थे। बच्चे बड़े, गुलाम आज़ाद, अमीर गरीब, दोस्त दुश्मन, सब आपके इखलाक हसना से मुतासिर थे। अपने कभी बदजुबानी नहीं की, कभी किसी को हकीर नहीं समझा, कभी ज़ाती इंतकाम नहीं लिया और हमेशा अदल, रहमत और सब्र का रास्ता इख्तियार फरमाया। अगर हम अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं तो हमें आपके अखलाक को अपनाना होगा। आज के दौर में अच्छे अखलाक की ज़रूरत पहले से ज़्यादा है। हमारे मुआशरे में बेसब्री, बदतमीज़ी, झूठ, बददियानती और खुद गर्जी बढ़ रही है। इसलिए हर घर, हर स्कूल, हर दफ्तर और हर गली महल्ले में इखलाकी तरबियत की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि इज़्ज़त कैसे करनी है, बात कैसे करनी है, बड़ों की खिदमत कैसे करनी है, छोटों से शफ़क़त कैसे करनी है, सच कैसे बोलना है और गलत काम से कैसे बचना है। अगर नई नस्ल को इखलाकी बुनियादें मजबूत मिल जाएं तो मुस्तकबिल में एक पाकीज़ा और पुरअमन मुआशरा तश्कील पा सकता है। आखिर में ये बात याद रखनी चाहिए कि अच्छे अखलाक और अच्छा किरदार इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों के लिए कामयाबी का जरिया है। जिसके अखलाक अच्छे हों इसका दिल रोशन होता है, इसकी ज़बान मीठी होती है, इसका किरदार मजबूत होता है और उसकी ज़िंदगी फ़ायदामंद बन जाती है। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर सच्चाई, अमानत दारी, सब्र, आजिज़ी, नरमी, हमदर्दी, मुआफ़ी और मोहब्बत जैसी खूबियाँ पैदा करें। यही वो रास्ता है जो इंसान को इज़्ज़त, सुकून और कामयाबी की तरफ ले जाता है। अच्छा अखलाक सिर्फ एक सिफत नहीं बल्कि मुकम्मल ज़िंदगी का नाम है। जो शख्स अपने अखलाक को संवार लेता है वो हकीकत में अपनी पूरी ज़िंदगी को संवार लेता है। अच्छे अखलाक और किरदार इंसान की असल खूबसूरती इसके चेहरे, लिबास, अमाल और दौलत में नहीं बल्कि इसके अखलाक और किरदार में होती है। कोई शख्स अगर इल्म, ताकत, ओहदा और शोहरत रखता हो मगर उसके अखलाक अच्छे ना हों तो लोग इससे दूर रहते हैं। इसके बरक्स एक सादा, गरीब और आम इंसान भी अगर अच्छे अखलाक और पाकीज़ा किरदार का मालिक हो तो सबके दिलों में जगह बना लेता है। यही वजह है कि हर दौर में अच्छे अखलाक को इंसान की सबसे बड़ी दौलत और सबसे कीमती जीनत करार दिया गया है। इस्लाम ने अखलाक को ईमान का हिस्सा बनाया।
हुजूर अकरम की पूरी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि कामयाबी सिर्फ इबादत के ज़ाहिरी पहलू में नहीं बल्कि हसन अखलाक में भी है। अपने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। ये एक ऐसा उसूल है जो सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रोशनी का मीनार है। अच्छे अखलाक इंसान को महबूब, बावकार, काबिल एतमाद और कामयाब बनाते हैं। अखलाक दरअसल इंसान के बातिन की हालत का नाम है। जब दिल पाक हो, नीयत साफ हो, ज़बान नर्म हो, नज़र झुकी हो और हाथ दूसरों को तकलीफ देने से बच्चे हों तो वो इंसान अच्छे अखलाक वाला कहलाता है। किरदार इस इंसान के अंदरूनी और बैरूनी रवैये का मजमुआ है। अच्छा किरदार ये जाहिर करता है कि इंसान मुश्किल वक्त में कैसा है, गुस्से में कैसे बोलता है, कमजोरी के वक्त कैसा फैसला करता है और दूसरों के साथ कैसे पेश आता है। यही वो पैमाना है जिससे इंसान की असल शख्सियत सामने आती है। अच्छे अखलाक में सबसे पहला वस्फ सच्चाई है। सच्चा इंसान लोगों का एतमाद हासिल करता है। झूठ वक्ती फायदा तो दे सकता है मगर हमेशा के लिए रुसवाई ले आता है। सच्चाई दिल को साफ रखती है और रिश्तों को मजबूत करती है। सच्चा इंसान ना खुद धोखा देता है और ना दूसरों से धोखा खाता है। इसकी बात में वजन होता है और उसके वादे मोतबर होते हैं। इसी तरह अमानतदारी भी अच्छे अखलाक का बुनियादी हिस्सा है। अमानतदारी सिर्फ पैसे या चीज़ की हिफाजत का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी राज की हिफाजत और हर काम को दियानत से अंजाम देने का नाम है। हसन सलूक भी अच्छे अखलाक में शामिल हैं। सख्त मिजाज इंसान के पास चाहे बहुत कुछ हो, लोग इसकी बात सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन नरमी से बात करने वाला इंसान आम दिलों में घर कर देता है। नरमी दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकती है और गुस्सा बिगड़े हुए हालात को मजीद खराब कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि नर्म जुबान तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। एक महज़िब इंसान लोगों से बात करते वक्त लहजे, अल्फाज और अंदाज में एहतियात करता है। अफू व दरगुजर अच्छे अखलाक की एक आला सिफत है। हर इंसान से गलती हो सकती है। जो शख्स दूसरों की गलतियों को मुआफ करना जानता है वो बड़ा दिल रखता है। मुआफ करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। इंतकाम दिल को थका देता है जबकि मुआफ़ी दिल को सुकून देती है। मुआशरे में वही लोग इज्जत पाते हैं जो दूसरों के ऐब छुपाते हैं, उनकी खताओं पर पर्दा डालते हैं और इस्लाह का रास्ता इख्तियार करते हैं। इस्लाम भी मुआफ़ करने की तरगीब देता है क्योंकि इससे दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। अच्छे अखलाक में तवाज़ो यानी आजिज़ी भी बहुत अहम है। तकब्बुर इंसान को गिरा देता है। जो शख्स खुद को सबसे बेहतर समझे वो दूसरों से कुछ नहीं सीख सकता। आजिज़ इंसान दूसरों की कदर करता है, उनकी बात सुनता है और अपनी गलती मानने में शर्म महसूस नहीं करता। ऐसे लोग इल्म, इज्जत और मोहब्बत तीनों हासिल करते हैं। दुनिया की तारीख गवाह है कि बड़े लोग वही होते हैं जो छोटों के साथ शफ़क़त से और बड़ों के साथ एहतराम से पेश आते हैं। हमदर्दी और इसार भी किरदार की खूबसूरती हैं। अच्छा इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के दुख दर्द को भी महसूस करता है। वो ज़रूरतमंद की मदद करता है, बीमार की इयादत करता है, भूखे को खाना देता है और कमज़ोर का सहारा बनता है। इसार का मतलब है कि इंसान अपनी ज़रूरत के बावजूद दूसरे को तरजीह दे। यही वो सिफत है जिससे मुआशरे में मोहब्बत, इत्तेहाद और भाईचारा पैदा होता है। जहाँ हमदर्दी हो वहाँ नफरत की जुड़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं। अच्छे अखलाक का एक और अहम पहलू एहतराम आदमियत है। हर इंसान काबिल एहतराम है, खा वो अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, आलम हो या जाहिल। अच्छा किरदार वाला शख्स किसी को हकीर नहीं समझता। वो अपने कलाम, अमल और रवैये से हर इंसान की इज्जत करता है। अगर हम दूसरों की इज्जत करेंगे तो लोग भी हमारी इज्जत करेंगे। मुआशरती सुकून का दारोमदार इसी बात पर है कि हम एक दूसरे को इंसान समझी, ना कि सिर्फ अपनी पसंद और नापसंद की कसौटी पर परखें। वालिदैन की खिदमत और बुजुर्गों का एहतराम भी अखलाक का अहम हिस्सा है। जो शख्स अपने वालिदैन के साथ नरमी, अदब और खिदमत का रवैया रखता है वो हकीकी मानों में अच्छे किरदार का हामिल होता है। वालिदैन वो हस्ती हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की राहतें औलाद के लिए कुर्बान की होती हैं। उनकी दुआ, शफ़क़त और तरबियत इंसान की शख्सियत को संवारती है। इसी तरह असातिज़ा, बड़ों और अहले इल्म का अदब इंसान को संजीदा, बाशऊर और बावकार बनाता है। अच्छे अखलाक में वदा पूरा करना भी शामिल है। बहुत से लोग बातें खूब करते हैं मगर वदा निभाते नहीं। ऐसा इंसान आहिस्ता आहिस्ता लोगों के एतमाद से महरूम हो जाता है। सच्चा किरदार वही है जो ज़ुबान को जिम्मेदारी दे। अगर कोई बात की जाए तो इसे पूरा किया जाए, अगर अहद किया जाए तो इस पर कायम रहा जाए।
वदा खिलाफी न सिर्फ इखलाकी कमजोरी है बल्कि रिश्तों के टूटने की बड़ी वजह भी बनती है। साफ गोई, सब्र और बर्दाश्त भी किरदार की बुनियादी ईंटें हैं। जिंदगी में हर इंसान को खुशी और गम, कामयाबी और नाकामी, तारीफ और तनकीद का सामना होता है। जो शख्स सब्र करना जानता है वो मुश्किल हालात में भी खुद को संभाल लेता है। बर्दाश्त इंसान को नफ्सियाती ताकत देती है। हर बात पर भड़क उठना, हर इख्तिलाफ पर लड़ पड़ना और हर तनकीद को जाती दुश्मनी समझना अच्छे अखलाक के खिलाफ है। असल अजमत यह है कि इंसान गुस्से के वक्त भी अपने आप पर काबू रखे। किरदार की अच्छाई का एक बड़ा सबूत खाक और पाकीज़गी है। शर्म व हया इंसान की अंदरूनी खूबसूरती है। बेहयाई, फहश गोई, गलत नज़र और बेमकसद हरकत इंसान के वक़ार को कम करती है। जो शख्स अपनी ज़बान, नज़र, लिबास और रवैये में पाकीज़गी रखता है वो मुआशरे में एतमाद और एहतराम हासिल करता है। पाकीज़ा किरदार वाला इंसान हर जगह काबिल कबूल होता है क्योंकि इसकी मौजूदगी से माहौल संवरता है, बिगड़ता नहीं। अच्छे अखलाक इंसान के घर को जन्नत बना देते हैं। अगर घर के अफराद एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एहतराम और बर्दाश्त से पेश आएं तो घर अमन का गहवारा बन जाता है। मियाँ बीवी में हसन सलूक हो, वालिदैन बच्चों से शफकत करें, बच्चे बड़ों की इज्जत करें और बहन भाई एक दूसरे के साथ ताउन करें तो घर में खुशी और सुकून रहता है। लेकिन जहाँ बदतमीजी, झगड़ा, तंज और बेअदबी हो वहाँ घर होते हुए भी बेसुकूनी रहती है। इसी तरह अच्छे अखलाक स्कूल, दफ्तर, बाजार और हर इदारे की कामयाबी का राज है। एक तालिब इल्म अगर उस्ताद का अदब करे, वक्त की पाबंदी करे, सच बोले और मेहनत करे तो वो सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि अच्छा किरदार भी हासिल करता है। एक मुलाजिम अगर दियानतदारी से काम करे तो इदारा तरक्की करता है। एक ताजिर अगर सच्चाई, इंसाफ और नरमी से कारोबार करे तो उसकी बरकत बढ़ती है। गोया है अखलाक सिर्फ ज़ाती फ़ायदे का जरिया नहीं बल्कि इज्तिमाई तरक्की की बुनियाद भी है। आज के दौर में इखलाकी कमजोरी बहुत सी मुश्किलात की जड़ बन चुकी है। झूठ आम है, वदा खिलाफी आम है, दूसरों की तहकीर आम है और हसद व बुग़्ज़ ने दिलों को सख्त कर दिया है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर से इखलाकी कमजोरियों को दूर करें। सबसे पहले नियत दुरुस्त की जाए, फिर ज़बान को काबू में रखा जाए, फिर रोज़मर्रा ज़िंदगी में सच्चाई, दियानत, सब्र, नरम दिली और शुक्रगुजारी को अपनाया जाए। अगर इंसान अपने नफ्स की इस्लाह कर ले तो उसकी शख्सियत खुद ब खुद निखर जाती है। बच्चों की तरबियत में भी अच्छे अखलाक बुनियादी हैसियत रखते हैं। बचपन में दी गई तरबियत पूरी जिंदगी असरअंदाज होती है। अगर बच्चे को शुरू ही से सच बोलना, बड़ों का अदब करना, छोटों पर शफकत करना, सफाई रखना, वक्त की पाबंदी करना और दूसरों का ख्याल रखना सिखाया जाए तो वो बड़ा होकर एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। वालिदैन और असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ निसाबी इल्म ना दें बल्कि किरदार साजी भी करें, क्योंकि इल्म के साथ अदब ना हो तो इल्म अधूरा रह जाता है। अच्छे अखलाक और किरदार इंसान की दुनिया भी संवारते हैं और आखिरत भी। दुनिया में लोग ऐसे इंसान को पसंद करते हैं जिसका किरदार अच्छा हो, क्योंकि इसके पास बैठकर दिल को सुकून मिलता है। कारोबार, रिश्ता, दोस्ती और मुआशरत सब अच्छे अखलाक से मजबूत होते हैं। आखिरत में भी अच्छे अखलाक वाला इंसान बुलंद मकाम पाता है, क्योंकि अल्लाह ताला पाकीज़ा दिल और सच्चे किरदार वालों को पसंद फरमाता है। यूं अखलाक इंसान के लिए दुनिया की इज्जत और आखिरत की कामयाबी दोनों का वसीला बन जाते हैं। आखिर में ये कहना बजा है कि अच्छे अखलाक इंसान का सबसे बड़ा जेवर है। दौलत खत्म हो सकती है, हसन मांद पड़ सकता है, ताकत कमजोर हो सकती है, मगर अच्छा किरदार हमेशा जिंदा रहता है। तारीख में वही लोग याद रखे जाते हैं जिनके अखलाक बुलंद थे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी ज़बान, नज़र, दिल और अमल को पाकीज़ा बनाएं, दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, सच्चाई और दियानत को अपनी आदत बनाएं और हर हाल में अखलाक के रास्ते पर चलें। यही रास्ता इंसान को इज्जत, मोहब्बत, सुकून और कामयाबी अता करता है। नतीजा यह है कि अच्छे अखलाक और किरदार सिर्फ एक इखलाकी खूबसूरती नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज़ ज़िंदगी है। जो इंसान अपने अखलाक को संवार लेता है वो अपने रिश्तों, अपने मुआशरे और अपनी आखिरत को संवार लेता है। इसलिए हमें नूनगुना हर रोज़ अपने अंदर ये सवाल जिंदा रखना चाहिए, क्या मेरा रवैया दूसरों के लिए सहूलत बन रहा है या तकलीफ? अगर हम इस सवाल का जवाब सच्चाई से दें और अपनी इस्लाह करते रहें तो यकीनन हमारी जिंदगी बेहतर, बामकसद और कामयाब हो जाएगी।